YouTube व्यूअर्स, मुसाफिर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है। कहानियों के सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है। ये कहानी कृष्णचंद्र की है। उर्दू भाषा में माहिर फन के नाम से, जिसे बदलकर हमने कलाकार रखा है। कृष्णचंद्र उर्दू हिंदी के बड़े अफसाना निगार कहानीकार थे। दुनिया की 74 जबानों 74 लैंग्वेजेस में इनकी कहानियों का ट्रांसलेशन, अनुवाद, तर्जुमा हुआ है। इसे घटा बढ़ाकर हमने छोटा कर दिया है। पेश है कहानी कलाकार। कलाकार हिंदुस्तान के दो बड़े राज कुतुब मीनार जलेबी। कहते हैं कि प्रोफेसर वहीद अख्तर का है अंदाज़े बयां। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके दो भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। थैंक यू जब तक ना कहें उसे पूरा देखिएगा। थैंक यू। माहिर फन कलाकार हिंदुस्तान के दो बड़े राज कुतुब मीनार जलेबी। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था, उन दिनों मगरिब यानी यूरोप से बड़े बड़े माहिर फन कलाकार आए। आते ही उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल डाला। उन्होंने नए नए तरीके इजाद किए। अगले जमाने में भारत हिंदुस्तान में सिक्कों का रिवाज ज्यादा ना था। चीजें कौड़ियों के मोल बिकती थी और बाइफरात ढेरों मिलती थी। हर हिंदुस्तानी को उसकी बुनियादी जरूरत, एक घर, कपड़ा, खाना, बीवी और मौत मिल जाती थी। यानी रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन के बस 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो मिल ही जाते थे। इन कलाकारों ने इसमें भी एक नया तरीका ढूंढ लिया और कागज का सिक्का चलाया। जैसे जैसे ये सिक्का चलता गया, लोगों के पास दौलत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और अब तो ये हाल है कि ये धन दौलत काला भी होता है और सफेद भी होता है। इस काले धन को लाने के लिए सरकार को इस कागज के नोट की नोटबंदी भी करनी पड़ी। हिंदुस्तान में कागज का सिक्का, रुपया आने से पहले सोने का सिक्का चलता था और अशरफी कहलाता था। तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। फिर रफ्ता रफ्ता चांदी के सिक्के ढलने लगे। फिर आधे चांदी और निकल तांबे के सिक्के चलने लगे। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसे तक के सिक्के चलते थे और खूब चलते थे। अब तो ये हाल है कि पैसा 2 पैसा तो छोड़िए, चवन्नी और अठन्नी भी गायब हो गई। कहावत भी आउटडेटेड हो गई। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल।
ان کلاکاروں کے آنے سے کاغذ کی کرنسی چلنے لگی. کاغذ ہی کاغذ رہے. ایک روز کاغذ بھی نہ رہیں گے اور صرف ایشور اللہ اور گاڈ کا نام بھی باقی رہ جائے گا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی بینکر نہیں. وہ کتنا انٹرسٹ دیتا ہے. ذرا دیکھیے یہ فلم 10 لاکھ کا گیت. غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا، تم 1 پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا. غریبوں کی سنو. 1 پیسے پر 10 لاکھ ہے نا سب سے بڑا بینکر. ان کلاکاروں نے جہاں ریل گاڑی، ڈاک اور سڑکیں لائی، وہاں انہوں نے تعلیم، ایجوکیشن کا ڈھرا ہی بدل ڈالا. کلچر، تہذیب بھی بدل ڈالی. بڑے فنکار لارڈ میکالے نے انگریزی تعلیم جاری کی جو پہلے بڑے شہروں تک ہی تھی. اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں پڑھا لکھا ہندوستان ان پڑھ جاہل ہندوستان ہو گیا. جہاں پہلے 50-60% لوگ اپنی زبان پڑھ لیتے تھے، وہاں اب صرف 5-7% پڑھے لکھے رہ گئے. وہ بھی انگریزی میں ایسی کیٹ پیٹ کرتے تھے جو زیادہ تر ہندوستانیوں کے پلے نہ پڑتی تھی. یہ پرانی بات ہے ڈیئر ویورس. اب تو انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے، لنک لینگویج ہے. ہاں ابھی سرکار نئی ایجوکیشن پالیسی لائی ہے. اپنی ماتر بھاشا میں پرائمری ایجوکیشن، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی. پہلے، بہت پہلے ہندوستان میں حکیم اور وید ہوتے تھے. یہ کلاکار آئے تو نیا طریقہ علاج کا لے کر آئے، یعنی ڈاکٹری علاج، جنہیں ڈاکٹر والے ڈاکٹر بابو کہتے تھے. یہ تھرمامیٹر سے بخار ناپتے تھے، اب تو کورونا ناپتے ہیں. یہ آئے تو نئی نئی بیماریاں بھی ساتھ لائے. پہلے ہندوستان میں گنی چنی بیماریاں تھیں، بخار، دمہ، پیچش، پاگل پن اور ایسی 2-4 الا بلا بیماریاں. اب تو بیماریوں کی گنتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بیمار کم اور بیماریاں زیادہ ہیں. زیادہ تر کیسز میں آدمی مر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے کون سی بیماری تھی. جیسے کورونا. یہ بڑی عجب غضب بیماری ہے جو پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، یعنی ہے اور نہیں ہے، نہیں ہے اور ہے. مثال کے طور پر مجھے پچھلے دنوں دلی میں ایک فرانسیسی فنکار، باہر فن، کلاکار سے ملاقات ہونے کا موقع، اوسر ملا. آپ پچھلے 25 سال سے اس ملک میں ہیں اور ہندوستانی لباس، خاص کر ساڑی پر ریسرچ کر رہا تھا. میں نے اسے ساڑی کے بارے میں بتایا اور سمجھا کہ جان چھوٹی. 2-4 دنوں میں وہ مجھے پھر کناٹ پیلس میں گھومتا ہوا مل گیا. بڑا اداس سا معلوم پڑتا تھا. میں نے کہا، ہیلو پروفیسر شیفر. مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، جیسے موڈیم وہ خوش ہوا. اس نے شیک ہینڈ کیا. میں جلدی ہی فرانس لوٹ جاؤں گا، مگر ایک مسئلہ، پرابلم ذرا ٹیڑھا ہے، حل نہیں ہو رہا ہے. اسے سالو کرنے میں میری مدد کریں گے؟ ضرور ضرور، فرمائیے. میں قطب مینار کے بارے میں سوچ رہا تھا. قطب مینار آپ دیکھیے نا، اتنی بڑی، اتنی اونچی عمارت، اتنے بھاری بھاری پتھر اتنی اونچائی تک کیسے لے جائے گئے؟
जिस जमाने में ये इमारत बनी थी उस जमाने में हमें मालूम है कि क्रेन तक मौजूद नहीं थी। फिर इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाएंगे? हमारे पेरिस में एफिल टावर है, मगर वो तो लोहे से बना है। पहले इसे जमीन पर लिटा कर ढाल लिया गया, फिर क्रेनों के जरिए सीधा कर लिया गया। ये कुतुब मीनार, उसने मायूसी से सर हिलाकर कहा, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा, इसकी तामीर के बारे में पक्का तो कुछ नहीं बता सकता। दरअसल दिल्ली की इमारतों के बारे में हर चीज पुरस्कार सस्पेंसफुल है। अब कुतुब मीनार को ही ले लीजिए। एक रिवायत कहानी ये है कि इसे जमीन पर लिटाकर तैयार किया गया और बाद में इसे रस्से से बांधकर खड़ा कर दिया गया। ओह, वंडरफुल वंडरफुल, फ्रांसीसी ने कहा। एक और रिवायत जो ज्यादा भरोसेमंद है वो ये कि ये मीनार जहां जिस जगह पर है वहां पर किसी जमाने में एक पहाड़ी थी, लाल लाल पत्थर की। ये मीनार उसी पहाड़ी को खोद खोद कर तैयार किया गया है। और बिल्डिंगें तो जमीन के नीचे से शुरू होती हैं, बनती हैं और ऊपर आसमान की तरफ जाती हैं। कुतुब मीनार की क्या बात है, ये इमारत ऊपर से शुरू हुई और खोदते खोदते जमीन के अंदर चली गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। और जब कुतुब मीनार बन गया तो पहाड़ी के बाकी बचे हुए हिस्से को काट काट कर फेंक दिया गया। अब सिर्फ कुतुब मीनार यहाँ पर खड़ा है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी रिवायत ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि दिल्ली शहर में कई जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसी पहाड़ियां बाकी हैं। मेरा ख्याल है कि कुतुब मीनार ही नहीं, पूरे दिल्ली इस तरह की पहाड़ियों से ऊपर से नीचे काट काट कर बनाई गई है। जब भी तो इसकी इमारतें बाहर से ऐसी लाल लाल और अंदर से काली अंधेरी हैं, एक पहाड़ी गुफा की तरह। वाह वाह, क्या बात सुझाई है आपने। मोशियो, मैं 2-3 दिनों में फ्रांस चला जाऊंगा। मुमकिन है आपसे फिर मुलाकात ना हो। बेहद शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। डियर यूट्यूब व्यूवर्स, ये कहानी का पहला वीडियो है। आपने देखा और जान लिया कि कुतुब मीनार का राज क्या है, ये कैसे बना। दूसरे वीडियो में जानिए, पार्ट 2 में, हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा राज, जलेबी जलेबी जलेबी। एशिया के सबसे बड़े कहानीकार कृष्ण चंद्र के कलम से, और जिसे मुसाफिर सुना रहे हैं यानी प्रोफेसर वहीद अख्तर ने बयान किया है। कहते हैं कि प्रोफेसर वहीद अख्तर का है अंदाज़े बयां। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू तक पूरा देखिए। थैंक यू।